Assalamu alaikum, my dear students. I hope you all are doing great. In today's lecture, we will be studying the seventh edition of APA, the full form of which is American Psychological Association. Hey, so in today's era where everything is so drifted by academic writing, we kind of feel ourselves in a chaotic situation where we find it very difficult to search for the appropriate writing style. Though we have that free flow of ideas coming and we jot them down on a piece of paper, and maybe in more advanced world we write it or type it down on our palm tops, our mobile, our laptops, our computers with the help of MS Word, yet we find it very difficult to find an appropriate writing format on the basis of which it would be accepted as a properly professional, verified, authenticized work, for which we have different kinds of platforms, different kinds of associations, the most common of which is AP, American Psychological Association. Now the question arises, where to find the exact rules of it? Though the books are very bulky, though the information is so spread out through the internet, it gets difficult for us to search for it, even with the help of, different chatbots, different artificial intelligence apps such as ChatGPT, different kinds of Google Bard, and many more. To settle it down, I have made it so easy for you guys. You have this handbook, this student guide, this handy guide where you would find the most basic and general rules, which are mostly, can be easily applied to your work. And you'll also get the practical examples, the exact formats where you can copy and paste just by changing or just by doing few adjustments according to your own work. So, without wasting any time, let's dig into this lecture today. But before that, let me make this thing very clear that my lecture today is going to be bilingual, which means I'll be using a switch between two languages, English and Urdu. Why? So that most of my audience, which is not able to understand English properly, and those which are not able to understand Urdu properly, can understand my lecture today. So, without wasting any further second, let's dig deep into it and look for the mechanics behind how APA works. So, first and foremost, you have this table of contents here, where we will be dealing with the three chapters. First chapter is the chapter which tells you regarding the introduction, what APA basically is, a small little intro, and how we format the entire, all the page settlements, all the setup of the page on which you work. That chapter 2 is regarding the citations. What are the citations, how you cite, and how it is done according to the rules of APA. And chapter 3 takes you to the referencing basics, which means the bibliography or the list of those citations, the list of those references which are cited in your work. On these three levels, we will be understanding APA. Now, coming to the first part, the basic page setup. But before that, let me tell you, or let me give you a little background regarding APA. So, as I already stated, APA, the name suggests, the full form of it is American Psychological Association. It clearly suggests us that it was an organization, it still is an organization which was set up by different psychologists back in America, and it was to give a rule book, a standard handy book for students to follow for writing their different kinds of research thesis, journals, research papers, books, and different kinds of online articles, in hand articles, hard form articles, even your assignments and all, you use them. So that was set according to that specifics. So it is basically an organization. We have different versions, different editions of it. The one which we are going to follow today, or the one on which this lecture is based, is the 7th edition. So my rules will be strictly boxed between the rules of the 7th edition, not touching 6th or any other one.
नाउ टॉकिंग अबाउट द बेसिक पेज सेटअप, यहाँ पर जो सेटअप की बात की जा रही है, बेसिक पेज सेटअप, कि जब आप अपना पूरा ड्राफ्ट लिख लेते हैं उसको अब एपीए के बताए हुए रूल्स के मुताबिक कैसे सेट करना है। तो सबसे पहले तो बेटा आप लोगों को एक चीज़ अपने जहन में खामखा होनी चाहिए, वो ये है कि एपीए कहता है कि जिस पेज पे आप लिख रहे हैं उसकी चारों तरफ से जो मार्जिन लाइन होती है, इट शुड बी 1 इंच फ्रॉम ऑल द 4 साइड्स, टॉप बॉटम राइट एंड लेफ्ट। अब अक्सर हम परेशान हो जाते हैं कि ये कौन सी मार्जिन लाइन है। मज़े की बात यह है कि आपका जो एमएस वर्ड होता है वो बाय डिफ़ॉल्ट ऐसे सेट किया जा चुका होता है कि आप उसमें ऑटोमेटिकली देख सकते हैं कि वो चारों तरफ से होती है। अगर आपके पास इस वक्त आप लोगों का लैपटॉप साथ पड़ा हुआ है तो प्लीज़ उसे टर्न ऑन करें, या मोबाइल है तो उसको चेक करें और आप देखें, एमएस वर्ड खोलें और आप उसमें लिखना शुरू करें। 2 पेज तो बड़ा है, लेकिन राइटिंग आपकी जो एमएस वर्ड में लिखी जा रही है वो राइट लेफ्ट टॉप और बॉटम में 1-1 इंच की स्पेस छूट रही है, वहाँ पे नहीं लिखा जा रहा। दैट मीन्स कि वो बाय डिफ़ॉल्ट ये सेटिंग है। अगर नहीं भी है, आपको बच्चे पता होना चाहिए कि एपीए कहता है कि जो सबसे पहला रूल है उसका, कि आपके पेज की सारी टॉप बॉटम राइट लेफ्ट ऊपर नीचे आजू बाजू सारी लाइंस चारों तरफ से 1 इंच का मार्जिन होना चाहिए। वो मार्जिन लाइन इमेजिनरी होती है, उसका मतलब ये है कि आपको लाइन बनानी नहीं है, आपको जहन में रखना है कि ये स्पेस है उसमें। नेक्स्ट आ जाता है दूसरा मेजर कंसर्न, आपने मार्जिन लाइन की सेटिंग कर दी। नेक्स्ट कंसर्न आ जाता है अब आपने लिखना किस फॉन्ट स्टाइल और फॉन्ट साइज़ में है। अब इसके लिए डिफरेंट किस्म के पर्सपेक्टिव्स दे आर स्प्रेड, लाइक फॉर इंस्टेंस पीपल से न्यू रोमन स्टाइल is new times new roman is mostly used style, though it is, but लोगों के जहन में पर्सपेक्टिव ये है कि वही एक स्टाइल है जो यूज़ होता है, जबकि एपीए आपको 4 स्टाइल्स की इजाज़त देता है। वन इज़ द टाइम्स न्यू रोमन, the other is the calibri, whatever you pronounce it, the other is the Arial, and the last one is the Georgia। ये 4 स्टाइल्स की इजाज़त आपको एपीए देता है। दो टाइम्स न्यू रोमन मोस्टली इस्तेमाल किया जाता है प्रोफेशनल पेपर्स में, लेकिन इसका कतन ये मतलब नहीं है कि आप इसके अलावा बाकी 3 यूज़ नहीं कर सकते। आपकी मर्ज़ी है, आप इन चारों में एक स्टाइल सेलेक्ट कर दें, लेकिन फिर उसके साथ एक छोटी सी शर्त आ जाती है, वो ये है कि राइट फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ योर टाइटल पेज till the very end of your reference page, even the last dot, the last period, वहाँ तक आपका स्टाइल वो एक ही रहेगा, उसको चेंज नहीं होना, नो मैटर व्हाट। एक चीज़ तो ये हो गई। अब स्टाइल आप जो भी मर्ज़ी सेलेक्ट कर लें, इन चारों में से हो गया। अब आपको फॉन्ट साइज सेलेक्ट करना होगा। तो टाइम्स न्यू रोमन को छोड़कर बाकी तीनों, कैलिब्राई, एरियल एंड द अदर वन बीइंग जॉर्जिया, तीनों का 11 ग्रेड पॉइंट आपका 11-11-11 साइज़ होगा, जबकि टाइम्स न्यू रोमन का साइज़ 12 होगा। अब इसमें बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने वाले स्टूडेंट्स, जिनको मैं कहती हूँ क्वेश्चन मार्क स्टूडेंट्स, वोट करा के क्वेश्चन करेंगे कि मैडम ये टाइम्स न्यू रोमन का क्यों 12 है, वाई नॉट दिस 11 एज वेल। उसका रीज़न जो मैंने अपने हद तक दरियाफ़्त किया वो ये है कि अगर आप एक्सपेरिमेंटली गौर से चेक करें तो टाइम्स न्यू रोमन साइज़ में थोड़ा छोटा लगता है, जब आप उसका 12 और इन बाकी तीनों का 11 देखें तो लगभग ये सारे आपस में साइज़ के इक्वल लगते हैं। इस वजह से टाइम्स न्यू रोमन का 12 दिया गया है। ये प्रॉब्लम तो यहाँ सॉर्ट। लेकिन एक चीज़ मैं यहाँ बता दूँ कि आपने फॉर एग्ज़ाम्पल अगर टाइम्स न्यू रोमनी फॉलो करना है और उसका साइज़ है 12, यही फॉलो करना है, इसका मतलब ये है कि आपके पेपर के स्टार्ट से लेके आपके पेपर के एंड तक वो चेंज नहीं होगा। एम आई मेकिंग सेंस टू यू ऑल? इसका मतलब ये है कि इवन हेडिंग्स, इवन कोई भी चीज़, इवन लेबलिंग्स ऑफ द डायग्राम, व्हाटसोएवर इट इज़, सबका साइज़ 12 ही रहेगा। मैम हेडिंग को कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे फिर? मैम वो बोल्ड होती है, बिल्कुल बोल्ड होती है, लेकिन हेडिंग्स का चैप्टर, हेडिंग्स का पोर्शन अभी आगे आएगा जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि हेडिंग्स को कैसे डिफ्रेंशिएट करना है। साइज़ और स्टाइल दोनों एक ही रहेंगे और उनको नहीं बदलना रिलीजियसली।
बात ख़त्म। अब आ जाते हैं लाइन स्पेसिंग के ऊपर। यहाँ पे फरमाया जाता है कि आपको थ्रू आउट द पेज, दैट मीन्स जब बेटा मैं थ्रू आउट द पेज बोल रही हूँ, मैं शुरू से आखिर तक, शुरू से आखिर की ही बात कर रही हूँ, मतलब कि इधर मैं जितने भी रूल्स बोल रही हूँ वो पेज के स्टार्ट से, टाइटल पेज के पहले नंबर से लेके रेफरेंस पेज के आखिरी फुल स्टॉप तक फॉलो किया जाएगा रिलीजियसली। स्पेसिंग की बात की जाए, आप अपने MS वर्ड में जाएं, ऊपर पैराग्राफ का एक पोर्शन लिखा होता है, आप उसको क्लिक करें। जब आप उसे ओपन करते हैं वहाँ पर डिफरेंट किस्म की स्पेसिंग्स आपको दी होती हैं, सिंगल, डबल, 1.5, मल्टीपल स्पेसिंग। माने अगर आप लोगों को याद हो, जिनको समझ नहीं आ रही, आपको याद है बचपन में आप लोग जब पेन से लिखते थे या पेंसिल से कॉपी पे लिखते थे, यू वर लर्निंग टू राइट बैक इन दोज डेज, वहाँ पे अक्सर आप लोग 1 लाइन स्पेस छोड़ दिया करते थे। कुछ स्टूडेंट बिल्कुल भी स्पेस नहीं छोड़ता था, कुछ स्टूडेंट एक ही लाइन में 2 लाइनें लिख रहा होता था। ये वही वाला हिसाब है, यहाँ पे आपने डबल स्पेस छोड़नी है, यानी 2 लाइन स्पेस हर लाइन के बीच में छोड़नी है। उसका तरीक़ेकार ये होता है कि जब आप एक बार अपना, या तो आप शुरू से ही सेटिंग में जाके कर लें, वो मैंने पैराग्राफ वाला एरिया बता दिया, या तो आप वहीं से कर लें। अगर आप वहाँ से नहीं करते देन आप ऐसा कर सकते हैं कि आप पहले अपना पूरा ड्राफ्ट टाइप कर लें और उसके बाद जब आपका काम कंप्लीट हो जाए आप पूरे को सेलेक्ट करें, ऊपर जाएं पैराग्राफ के ऑप्शन में, वहाँ पे डबल को क्लिक करें, उसको ओके करें, आपकी डबल स्पेसिंग थ्रू आउट हो जाएगी। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर इस वीडियो पर रिस्पॉन्स अच्छा है तो नेक्स्ट वीडियो में एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के तौर पर, एक प्रैक्टिकली मैं आपको लैपटॉप पे सब करके दिखाऊंगी और उसे रिकॉर्ड करके अपलोड करूंगी, तो जिनके क्वेरीज क्लियर नहीं हुए उनके भी क्लियर हो जाएंगे। अब मूव करते हैं पैराग्राफ अलाइनमेंट एंड इंडेंटेशन की तरफ। पैराग्राफ अलाइनमेंट क्या है, इंडेंटेशन क्या है, बड़ी साइंटिफिक टर्म्स मैम आ गई। नहीं नहीं नहीं, इट इज़ वेरी वेरी ईजी। सबसे पहले बात कर देते हैं अलाइनमेंट की। अलाइनमेंट की, आपका पेज अलाइन कैसे है। अगर आपने देखा हो MS वर्ड पर 4 किस्म की अलाइनमेंट्स होती हैं, एक लेफ़्ट होती है, एक सेंटर्ड होती है, एक जस्टिफाइड होती है, एक राइट होती है। आपका इंटायर पेपर, इंटायर असाइनमेंट एक टाइटल पेज को छोड़ के, अब यहाँ पे मैं क्या कह रही हूँ, एक्सक्लूडिंग टाइटल पेज, उसको निकाल के इंट्रोडक्शन से आपका पूरा का पूरा पेपर आखिर तक विल बी लेफ्ट अलाइंड। मतलब कि लेफ़्ट साइड पे वो बिल्कुल मार्जिन के साथ सारी लाइंस लिखना स्टार्ट की जाएंगी, जबकि राइट साइड पे द लाइंस वुड बी रिग्ड। रिग्ड का मतलब है कि वो आप लोगों ने कर ली होंगी, वो आप लोगों ने बचपन में वो कर्ली सीजर से पेपर काटे थे, वैसे कर्ल कर्ल कर, या दूसरी तरफ से, मतलब एक साइड से तो आप मार्जिन का ख्याल रखते हैं, दूसरी साइड से मार्जिन का ख्याल नहीं रखते। आपका पेपर ऐसे होगा, वो भी प्रैक्टिकल एग्जाम्पल में करके दिखा दूँगी। ऑप्शन, बल्कि आपको समझ आ गई होगी, ऊपर ऑप्शन दिया होता है। ये तो पूरे पेपर की, पर मैंने क्या बोला, टाइटल पेज को निकाल के बाकी सारा पेपर आपका लेफ्ट लाइन होगा। मैम टाइटल पेज का क्या अलाइनमेंट होगा? टाइटल पेज, अगर आपके जहन में, प्लीज़ नीचे कमेंट डाउन करें, कमेंट डाउन बिलो, सॉरी उर्दू इंग्लिश मिक्स होगी। एनीवेज, टाइटल पेज की अलाइनमेंट आपकी सेंटर्ड होगी। ऊपर सेंटर्ड का ऑप्शन होता है, वो पूरा पेज सेंटर्ड अलाइन होगा। एम आई क्लियर? अब आ जाते हैं इंडेंटेशन के ऊपर। मैम ये तो कोई बहुत आपने मुश्किल सा लफ्ज़ बोल दिया, कुछ भी नहीं है इस लफ्ज़ में। वो बचपन में याद है मैडम कराती थी आपको स्कूल के टाइम में, जब वो आपको पैराग्राफ लिखना सिखा रही होती थी, एंड शी वुड गो लाइक कीप 1 फिंगर बिफोर स्टार्टिंग योर पैराग्राफ एंड देन स्टार्ट राइटिंग, जिसको हम कहते थे बचपन में 1 फिंगर गैप। जब आप पहली लाइन लिखते थे, इवन अभी आप अपने पास, अगर आपके पास कोई कॉपी है, उस पर 1 फिंगर रखें, अपनी इंडेक्स फिंगर, और आप लिखना शुरू करें। पहली लाइन लिख दी, अब अपनी इंडेक्स फिंगर हटा दें, दूसरी लाइन मार्जिन के साथ से लिखना शुरू करें। तो आप देखेंगे कि जब आपका पैराग्राफ स्टार्ट हुआ है तो फर्स्ट लाइन में छोटा सा गैप आया हुआ है, जिसको हम कहते हैं 1 फिंगर गैप, जो आप इंडेक्स फिंगर से करते हैं। अब ये ही 1 फिंगर गैप APA भी कहता है कि आपने फॉलो करना है।
मैडम, तो क्या अब हम लैपटॉप स्क्रीन्स पे और मोबाइल स्क्रीन्स पे अपनी फिंगर रख के स्टार्ट करेंगे गैप? ऐसे कैसे हो सकता है? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। इसके लिए आपको एपीए प्रॉपर सेटिंग देता है। उसी पैराग्राफ में ऊपर जाएं, उसी को क्लिक करें, वहाँ पे स्पेशल सेटिंग्स या स्पेशल वो ऐसा कुछ लिखा होता है, उसको क्लिक करें, नीचे आ जाएगा इंडेंटेशन, फर्स्ट लाइन, हैंगिंग, इस तरह के ऑप्शंस, जिसमें आपने फर्स्ट लाइन को क्लिक करना है। उससे क्या होगा कि आपके सारे पैराग्राफ्स में ऑटोमेटिकली फर्स्ट, अगर आप उसे डिफ़ॉल्ट पे सेट कर दें तो फर्स्ट लाइन में ये वन फिंगर स्पेस आ जाती है। इस वन फिंगर स्पेस को इंडेंटेशन कहते हैं एपीए और इंग्लिश की दुनिया में। अब मैडम, ये इंडेंटेशन होनी कितनी चाहिए? ऐसा ना हो कि आप अपने स्पेस बार पे फिंगर रख दें और कोई दो दो और कोई तीन तीन और कोई एक एक स्पेस दे के लिख रहा हो। नहीं नहीं नहीं, टाइप कर रहा हूँ, नहीं, उधर ही ऑप्शन होता है 0.5 इंच का। आप ऊपर नीचे कर सकते हैं ऑप्शंस में, उधर नंबरिंग में आपने 0.5 इंच की इंडेंटेशन स्टैंडर्ड रखनी है हर पैराग्राफ के लिए। अब ये इंडेंटेशन कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व करता है? अगर आप जानते हैं तो प्लीज़ नीचे कमेंट करें। जब तक कि वो स्टूडेंट्स जो जानते हैं वो कमेंट कर रहे हैं, वो जो नहीं जानते उन्हें मैं बताती हूँ। ये प्रॉब्लम सॉल्व करता है कि थ्रू आउट द पेपर डबल लाइन है स्पेस में, आपकी सारी लाइंस में डबल स्पेस है। उसके बावजूद हमारी आदत है, ये हमारा एक दैट्स अ काइंड ऑफ अ बिहेवियर दैट आई मे से, कि हम हमेशा न्यू पैराग्राफ स्टार्ट करने से पहले या न्यू हेडिंग स्टार्ट करने से पहले काफ़ी स्पेस छोड़ देते हैं, जो एपीए सख्त खिलाफ है जिसके। तो अब कैसे पता चलेगा कि ये पैराग्राफ यहाँ पे ख़त्म हो रहा है और नया पैराग्राफ शुरू हो रहा है, जब हम बहुत बड़ा आसमान और ज़मीन तक के बीच का स्पेस ना छोड़ दें? तो इसका प्रॉब्लम का सलूशन यही इंडेंटेशन है। आपने किसी भी पैराग्राफ में कोई स्पेस नहीं छोड़ना। जस्ट आपने सिंपल ये करना है कि आपने हर पैराग्राफ को स्टार्ट करने से पहले 0.5 इंच का इंडेंटेशन करना है। इसका मतलब कि लाइन के फर्स्ट लाइन के स्टार्ट करते हुए आप 0.5 इंच का वन फिंगर गैप स्पेस छोड़ देंगे। इस तरह आपका पूरा पैराग्राफ ईजिली, आपके जितने भी पैराग्राफ्स हैं वो एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे बग़ैर किसी और एक्स्ट्रा इजाफी स्पेस के। यहाँ पे तो ये बात ख़त्म। अब एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है, वो है पेज नंबरिंग का। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। हमें पेज नंबरिंग कैसे करनी है, कहाँ पे करनी है, कहाँ से कहाँ तक करनी है, ये बहुत कंफ्यूज करता है। पहले तो याद रखें, बहुत सारे स्टाइल्स हैं, रोमन नंबर्स हैं, उसके अलावा बहुत जो प्रॉपर मैथ्स नहीं होती 1 2 3, आपने एपीए में वो पेज नंबर्स यूज़ करने हैं। अब वो आपने यूज़ कहाँ पे करने हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात आ जाती है। अक्सर पेज के सेंटर में होते हैं, हम कभी बुक्स देखते हैं उसके बॉटम के सेंटर में, कोई बॉटम के टॉप के सेंटर में, कोई लेफ़्ट में कोई राइट में, बॉटम टॉप दोनों में, हमें समझ नहीं आती। एपीए कहता है कि आपने पेज नंबरिंग टॉप राइट कॉर्नर से शुरू करनी है, और वो 1 2 3 टॉप, पेज के टॉप और राइट कॉर्नर्स में होगा नंबर, और 1 2 3 4 जो मैथ्स का लिखते हैं हम, वो वाला होगा। ये बात तो इधर की। अब एक और कन्फ्यूजन आ जाती है, वो ये है कि हमें समझ नहीं आता कि हमने कहाँ से पेज नंबर स्टार्ट करना है। कुछ लोग कहते हैं टाइटल पेज का पेज नंबर होगा या नहीं होगा, ये कन्फ्यूजन होती है। क्लियरली अपने जहन में डाल दें, APA states and justifies this thing very clearly that the page numbering would start right from the title page up till the last page, which is the page of reference bibliography. इसका मतलब ये है कि आपने पेज नंबरिंग टाइटल पेज से ही करनी है, जहाँ पे आपका नाम लिखा है, जहाँ पे आपका टाइटल लिखा है, आपने वहीं से पेज नंबरिंग को अपनी स्टार्ट कर देना है और आखिर तक आप जाएंगे। ये प्रॉब्लम तो यहाँ ख़त्म। अब यहाँ पे पेज नंबर 5 में मैंने आपको टाइटल पेज का भी थोड़ा बताया। ये एक और बड़ा कंसर्न आता है अक्सर स्टूडेंट्स के, इवन सीनियर लेवल स्टूडेंट्स, मैं आपको बोलूँ कि MS MPhil और PhD लेवल पर भी स्टूडेंट्स आज तक इस मसले से दो चार हैं कि टाइटल पेज कैसे बनाया जाए। बड़ा क्लियर है, APA आपको क्लियरली कहता है, और इस चीज़ को अपने जहन के अंदर रखें। टाइटल पेज में पेज नंबरिंग हो गई। अब टॉप से आपने
अपने स्पेस बार पे या एंटर बार पे, सॉरी नॉट स्पेस, एंटर बार पर फिंगर रखनी है और 3 या 4 लाइंस का स्पेस छोड़ना है। आपकी मर्जी, 3 या 4, इसमें आपको चॉइस मिल रही है, 1 या 2 नहीं, 3 या 4, 5 या 6 नहीं, 3 या 4 स्पेस छोड़ दी। अब यहाँ पे आपने अपना टाइटल लिखना है, जो टॉपिक है आपकी असाइनमेंट या आपके रिसर्च पेपर का, और वो टाइटल बोल्ड होना चाहिए। लिख दिया आप लोगों ने, डन, वेरी गुड। अब उसके बाद आपने टाइटल के बाद 1 लाइन का स्पेस छोड़ना है, और 1 लाइन का स्पेस छोड़ने के बाद आपने अपना नाम लिखना है, क्योंकि आप ऑथर हैं। तो ये सबमिटेड बाय, सबमिटेड टू की बचकाना हरकतें बंद करें। आपने अगर असाइनमेंट भी की है या पेपर भी किया, आप उसके ऑथर हैं, आपने वो लिखा है, कंपोज किया। यू हैव टू राइट योर नेम। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका नेम है शाहिदा बानो, तो आपने एज़ इट इज़ अपना नेम शाहिदा बानो लिख लेना है। नेम लिख लिया। नेम के बिल्कुल नेक्स्ट आपने एफिलिएशन देनी है। एफिलिएशन माने डिपार्टमेंट कौन सा है और किस यूनिवर्सिटी का है। फॉर इंस्टेंस अगर आप नर्सिंग के स्टूडेंट हैं सरहद यूनिवर्सिटी में, तो आपने लिखना है इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग साइंसेज, कॉमा सरहद यूनिवर्सिटी ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पेशावर, फुल। कोई INS, कोई सूट, कहने से मुराद ये एब्रीविएशंस वगैरह नहीं लिखनी, आपने फुल फॉर्म्स लिखनी है और बीच में एक कॉमा ऐड करना है। चूँकि ये मैं कर चुकी हूँ प्रैक्टिकली, ये 1 लाइन में पूरा आ जाएगा। अगर 1 लाइन में पूरा नहीं आया, कोई और नेम है लेट्स से, तो आप नेक्स्ट लाइन में ऑटोमेटिकली चले जाएंगे, बट दैट्स परफेक्टली फ़ाइन, लेकिन ये 1 लाइन में बिल्कुल आ जाएगा। अब ये हो गया। अब एफिलिएशन के बाद आपका कोर्स नंबर और कोर्स नेम आ जाता है। कोर्स नंबर और कोर्स नेम का मतलब ये है कि आपका कोर्स का कोड क्या है, जिस सब्जेक्ट का असाइनमेंट या जिस सब्जेक्ट का रिसर्च पेपर या कोई आर्टिकल आप लिख रहे हैं, वो कोर्स का कोड क्या है। सबसे पहले कोड लिखेंगे, उसके बाद डालेंगे कॉलन, उसको आप कॉलन भी कह सकते हैं, कॉलन जो भी आप कहते हैं, वो जो 2 डॉट होते हैं वो। फिर उसके बाद आपने स्पेस देके अपने कोर्स का नेम लिखना है। फॉर एग्ज़ाम्पल एकेडमिक राइटिंग है, इंग्लिश 3 है, ट्रांसलेशनल स्किल्स हैं, और इस तरह और बहुत सारे हैं। कोई साइंस का नाम है, तो आप उस हिसाब से वो लिख सकते हैं। कोर्स का टाइटल लिख दिया। अब इसके बिल्कुल नेक्स्ट लाइन में कोई स्पेस नहीं छोड़ना। नेक्स्ट लाइन में आपने अपने इंस्ट्रक्टर का नाम लिखना है। इंस्ट्रक्टर माने आपका सुपरवाइज़र, आपका टीचर, आपको जो असिस्ट कर रहा आपकी जो हेल्प कर रहा है इस मामले में, आपको जो गाइड कर रहा है, आपने उसका नाम लिखना है, जो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड है, जो टीचर है या कोई सुपरवाइज़र है या कोई भी इंस्ट्रक्टर है। अब उसमें अगर तो वो PhD हैं, तो आपने DR इनिशियल लगाना है, DR डॉट और सो एंड सो, जो भी उसका नाम है, मेल है या फीमेल, व्हाटसोएवर, राइट। अगर तो वो PhD नहीं है, यानी डॉक्टोरल डिग्री या डॉक्टरेट उन्होंने नहीं किया, तो आपने सिंपल मिस्टर या मिस या मिसेस करके आगे नेम लिखना है। ये मिस MISS वाले मिस की बात नहीं करी, बल्कि MS वाले की बात करी। कहना मैं ये चाह रही हूँ कि आपने सिर्फ स्पेसिफाई करना है कि ये जेंटलमैन है या लेडी है। आपने मैडम और सर का कॉन्सेप्ट यहाँ पे आपने कतन मैडम और सर ये नहीं लगाना। बात समझ आ गई बेटा? ये हो गया। अब उससे नेक्स्ट लाइन पे आपने डेट लिखनी है। ये एक और कन्फ्यूजन होती है कि लोगों को डेट का तरीक़ेकार बिल्कुल समझ नहीं आ रहा होता। हमारा मेथड यहाँ पे मंथ, डे और ईयर का होता है, सॉरी मंथ, डेट और ईयर का होता है। अब मंथ, डेट और ईयर लिखते कैसे हैं? आपने मंथ को प्रॉपर फुल इंग्लिश फॉर्म में लिखना है। लेट्स से यहाँ पर लिखा हुआ है सितंबर, तो यू हैव टू राइट सितंबर, कोई कॉमा, कोई फुल स्टॉप, कोई हाइफन, जैसे आप लोग अक्सर डैश कहते हैं, नहीं लगाना, कोई स्लैश भी नहीं लगाना। सितंबर 10, अगर लेट्स सपोज 10 है, 11 है, 12 है, जो भी है वो। उसके बाद कॉमा, उसके बाद पूरा 2020 या 2024, जो भी आपकी डेट आती है, इस तरीक़ेकार से आप करेंगे और यहाँ पे आपका टाइटल पेज कंप्लीट हो जाएगा। एक चीज़ मद्देनज़र रखें कि टाइटल पेज में जो टाइटल होता है वो बोल्ड होता है, बाकी सारा स्टैंडर्ड फॉर्म में होता है, बिल्कुल भी बोल्ड नहीं होता, ठीक है। अब यही चीज़ें आप पेज नंबर 6 पे, पेज नंबर 7 पर
और पेज नंबर 8 में देखें तो वही रिपीटिशन आपको नज़र आएगी जो ऑलरेडी मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स। एक चीज़ जो पेज नंबर 8 पे ये फर्स्ट इमेज देखें, मैं आपको बताना चाह रही हूँ, यहाँ पे लिखा है रिपीट पेपर टाइटल एट द टॉप ऑफ द पेज ऑफ द टेक्स्ट। अब मैं आप लोगों को इसका रीज़न बताती हूँ। बेटा पूरे असाइनमेंट में आपके पूरे उसमें उसे क्या कहते हैं, कोई थीसिस लिख रहे हैं या कोई आर्टिकल लिख रहे हैं या कोई रिसर्च पेपर लिख रहे हैं, पूरे के पूरे उसके अंदर आपके ड्राफ्ट के अंदर सिर्फ 2 बार टाइटल लिखा जाएगा। फर्स्ट आपके टाइटल पेज पे होगा और जो दूसरा रिपीटिशन है उसका वो आपके बॉडी के स्टार्ट में होगा, जो आपकी मेन बॉडी है, जहाँ से आप टेक्स्ट लिखना शुरू करते हैं, आपका इंट्रोडक्शन जहाँ से स्टार्ट होता है, जहाँ से आपका काम स्टार्ट होता है, ओरिजिनल वर्क जो आप कर रहे हैं, जो बात आप कर रहे हैं, जहाँ से वो स्टार्ट होगी वहाँ पे फिर आप जो है आप टाइटल को रिपीट करेंगे। एम आई मेकिंग सेंस टू यू ऑल? आई होप आई एम। ठीक है, और इस टाइटल को भी आपने बोल्ड करना है। तो सी 2 जगहों पे टाइटल आ गया, एक आपके टाइटल पेज पे आ गया और एक आपका जहाँ से मेन टेक्स्ट बॉडी स्टार्ट हो रहा है वहाँ पे आ गया टाइटल, और वो भी बोल्ड होगा और वो भी सेंटर्ड होगा। बस ये 2 बार टाइटल आपका लिखा जाएगा पेपर पे। अब इसके बाद यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आता है जो ब्लॉक कोटेशन अलाइनमेंट का आता है। ये बताने के लिए मुझे सबसे पहले आपको साइटेशंस पढ़ाना पड़ेगा, तो जब मैं वो पढ़ाऊँगी उस वक़्त मैं ये कॉन्सेप्ट क्लियर करूँगी। अब हम जाते हैं जो हमारा एक और मेन पोर्शन है हेडिंग्स का, कि उसको कैसे जनरेट किया जाता है अकॉर्डिंग टू APA। यहाँ पे बेटा पेज नंबर 10 पे मैं आप लोगों को 5 लेवल्स ऑफ हेडिंग की बात करूँगी। 5 लेवल्स माने 5 हेडिंग्स नहीं बेटा, 5 लेवल्स माने 5 लेवल्स। मिसाल के तौर पर मैं कहती हूँ कि मैं साइंस में रिसर्च करना चाह रही हूँ, एक जनरल 5 लेवल्स ऐसे मैं आपको बता सकती हूँ। जब हम जनरल से स्पेसिफिक की तरफ आते हैं, लेट्स सपोज जैसे मैंने भी आपको एग्जांपल दी साइंस को मैं अपनी लेवल 1 हेडिंग देती हूँ। अब साइंस के अंदर कितनी ब्रांचेस आ जाती हैं? फॉर इंस्टेंस मैं कहती हूँ केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड फिज़िक्स। ये सेकंड लेवल की 2 हेडिंग्स 3 हैं। हम ये तो नहीं कह सकते कि टोटल 4 हेडिंग्स हो गई, नहीं, हम कह सकते हैं कि ये 2 लेवल्स हो गए। साइंस बीइंग द फर्स्ट लेवल, उसके फर्दर सब डिविजन्स में या सब हेडिंग्स में फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आ गया, तो ये सेकेंड लेवल हो गया। नाउ फॉर एग्जाम्पल आई टेक बायोलॉजी एंड फर्दर आई डिवाइड इट इनटू नेक्स्ट 2 सब कैटेगरीज ऑफ इट। फॉर इंस्टेंस आई वुड से बॉटनी एंड जूलॉजी, इसी तरह फिज़िक्स की अपनी सब कैटेगरीज, इसी तरह केमिस्ट्री की अपनी सब कैटेगरीज। तो उसका मतलब ये हो जाता है कि दैट इज़ द थर्ड लेवल। 2 अगर उसमें 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, 10,000 क्यों नहीं हैं, वो 10,000 की 10,000 हेडिंग्स वो थर्ड लेवल कंसिडर किया जाएगा। फॉर इंस्टेंस अब मैं बायो में ज़ूलॉजी और बॉटनी में चली गई जो थर्ड लेवल है। अब ज़ूलॉजी में मैं चली जाती हूँ किंगडम एनिमेलिया के अंदर, अब ये 4th लेवल हेडिंग हो गई। किंगडम एनिमेलिया को फर्दर अगर मैं सब डिवाइड करूँ तो उसमें रेप्टिलियंस आ जाते हैं, एम्फीबियंस आ जाते हैं और भी बहुत सारे इस तरह के क्लासेस आ जाते हैं। तो ये डिफरेंट कैटेगरीज 5th लेवल की हेडिंग हो जाएगी। कहने से मुराद समझ आ गई बेटा कि जो फर्स्ट लेवल की हेडिंग होती है, जो मेन होती है, जो जनरल होती है, उसको फर्दर सब डिवाइड करके जितने हेडिंग्स होते हैं वो हमारे पास सेकंड लेवल हो जाता है। वो सारे हेडिंग्स के फर्दर नीचे जितने और हेडिंग्स आएंगे वो थर्ड लेवल। फॉर एग्जांपल थर्ड लेवल में 10 हैं, 10 के फर्दर हर ब्रांच को फर्दर डिवाइड किया जाए तो वो 4th लेवल, उसके फर्दर हम जाएंगे तो वो 5th लेवल। तो ये मैं नंबर ऑफ़ हेडिंग्स की बात नहीं कर रही है, मैं लेवल्स ऑफ हेडिंग की बात कर रही हूँ। बात समझ आ गई बेटा? इस तरह। अब ये तो हो गया मैम, हमें ये बता दें कि अब इसको लिखने का तरीक़ेकार क्या है। बेटा जब फर्स्ट लेवल की हेडिंग होगी, यहाँ पेज नंबर 10 पे आपको क्लियरली नज़र आ रहा है, आपकी हेडिंग का जो टाइटल है वो सेंटर्ड होगा और बोल्ड होगा। सेंटर्ड और बोल्ड, और जो टेक्स्ट होगा वो नेक्स्ट लाइन से, न्यू पैराग्राफ से स्टार्ट होगा, ठीक है, और वही 0.5 इंच की इंडेंटेशन के साथ। अब फ़ॉन्ट साइज़ और फ़ॉन्ट स्टाइल वही रहेगा जो शुरू से आखिर तक हमने पहले डिस्कस कर लिया। ये फर्स्ट लेवल की। सेकेंड लेवल की हेडिंग पे आ जाएं तो वो भी टाइटल उसका बोल्ड होगा, बट वो लेफ़्ट साइड से, जहाँ से हमारी राइटिंग शुरू हो रही है, लेफ़्ट लाइन होगा, लेफ़्ट साइड से वो स्टार्ट होगा। उसी तरह
जो पैराग्राफ है, जो टेक्स्ट है, वो न्यू लाइन से बिगिन करेगा 0.5 इंच की इंडेंटेशन के साथ। अब जो थर्ड लेवल की हेडिंग हमारे पास आती है वो भी लेफ़्ट अलाइन है, वो भी बोल्ड है, उसका भी टेक्स्ट नेक्स्ट लाइन से 0.5 इंच के इंडेंटेशन के साथ शुरू होगा। द ओनली डिफरेंस इज़ कि वो हेडिंग हमारे पास इटैलिसाइज होगी, इटैलिक करके लिखी जाएगी, ट्रांसवर्स वो तिरछी करके जो लिखी जाती है, टेढ़ी करके, ठीक है। अब ये 3 लेवल्स हो गए। फोर्थ और फिफ्थ लेवल की बात करें तो बेटा फोर्थ और फिफ्थ लेवल की जो हेडिंग्स हैं हमारे पास वो दोनों 0.5 इंच इंडेंट होगी। जी बिल्कुल, आप सही सुन रहे हैं। हेडिंग्स वुड हैव एन इंडेंटेशन ऑफ 0.5 इंच। बाय दैट आई मीन कि टेक्स्ट की बात नहीं की जा रही, हेडिंग की बात की जा रही है। हेडिंग को 0.5 इंच का स्पेस देकर स्टार्ट किया जाएगा, दोनों फोर्थ और फिफ्थ, और वही बोल्ड होगा। अब जब हेडिंग लिख दी उसके बाद एक पीरियड लगाया जाएगा। पीरियड माने फुल स्टॉप, जो डॉट होता है वो लगा दिया, और वहाँ से ही टेक्स्ट वुड बिगिन फ्रॉम द सेम लाइन आफ्टर दैट पीरियड, आफ्टर दैट फुल स्टॉप, आफ्टर दैट डॉट। मैम यहाँ पर इंडेंटेशन देनी है? नहीं देनी। रीज़न बीइंग क्योंकि ऑलरेडी हेडिंग को आपने इंडेंट किया हुआ है और उसी लाइन से शुरू कर रहे हैं। द ओनली डिफरेंस बिटवीन फोर्थ एंड फिफ्थ इज़ कि फोर्थ स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा जाएगा और फिफ्थ वाला हमारे पास हेडिंग इटैलिसाइज होगा, इटैलिक करके लिखा जाएगा। समझ आ गई बेटा? और हेडिंग सारे के सारे बोल्ड होते हैं। और ये याद रखें बेटा, हेडिंग्स में जो मेन वर्ड्स होते हैं, जो प्रॉपर नाउन होते हैं, जो स्ट्रेस्ड वर्ड्स होते हैं, ऑफ, द, एन के अलावा अगर वो बीच में आ रहे हैं तो उसके अलावा वो सबके फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है। लेकिन द, अगर स्टार्ट में आ रहा है तो यू नो कि इंग्लिश में जब हम सेंटेंस स्टार्ट करते हैं तो वो कैपिटल से ही स्टार्ट करते हैं। तो ये बहुत इजी फॉर्मेट था। पेज नंबर 10 पे आप खुद एक बार पढ़ लें। दैट्स इट विद द पेज फॉर्मेट। अब हमारा पेज फॉर्मेट बन गया है। अब हमने लिखनी है साइटेशन बेसिक्स। अब हमारे पास साइटेशंस होती क्या हैं? सबसे पहले तो आप इसको समझ लें बेटा, जब भी आप कोई पेपर कंपोज करते हैं, जब भी आप कोई रिसर्च पेपर लिखते हैं, कोई आर्टिकल लिखते हैं, इवन कोई असाइनमेंट लिखते हैं, आपको अपनी बात प्रूफ करने के लिए किसी सबूत की, किसी एविडेंस की, किसी रेफरेंस की, किसी हवाले की ज़रूरत पड़ती है। जब तक कि आप हवाला नहीं देंगे तब तक कि आपकी बात वेरीफाई नहीं होगी। उसको वेरीफाई करने के लिए ज़ाहिर है आप रिसर्च करें। रिसर्च मीन्स कि ऑलरेडी सर्च सिनेरियो पे, ऑलरेडी सर्च कॉन्सेप्ट को आप एक न्यू पर्सपेक्टिव से, एक न्यू डायमेंशन से अनरेवल कर रहे हैं, एक न्यू डायमेंशन से एक्सप्लोर कर रहे हैं, उसमें कुछ नया ढूंढ रहे हैं। जो चीज़ ऑलरेडी ढूंढी जा चुकी है उसमें कुछ नया या कोई नया एंगल पैदा कर रहे हैं। तो जाहिर है जब आप वो कर रहे हैं तो उसको साबित करने के लिए आपको कुछ एविडेंसेस के लिए, आपको कुछ स्टैटिस्टिक्स की, आपको कुछ फिगर्स की, आपको कुछ स्टेटमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी जो कि सॉलिडिफाई हैं ऑलरेडी, जो कि ऑलरेडी प्रूवन हैं, जो कि ऑलरेडी जस्टिफाइड हैं, जो कि ऑलरेडी पब्लिश्ड हैं, जो कि ऑलरेडी वेरीफाइड हैं, ताकि वो उस मदद से, उनकी मदद से आप अपनी न्यू बात को वेरीफाई करें, वैलिडेट करें, क्रेडिबल बनाएं। अब उसके लिए ज़ाहिर है कि आपको डिफरेंट हवालों की ज़रूरत है, डिफरेंट सोर्सेज से, किसी बुक से, किसी आर्टिकल से, किसी प्रोफेसर का, किसी ऑर्गेनाइजेशन का हवाला लेके उसकी बात उठा के आप अपने आइडिया को, अपने फ्री फ्लो ऑफ थॉट्स को जस्टिफाई करते हैं, प्रूफ कराते हैं। जब आप ये मकसद के लिए कोई हवाला देते हैं उस हवाले को कहा जाता है साइटेशन। और इन टेक्स्ट साइटेशन मैं से कहती हूँ क्योंकि ये हवाला जब आपके टेक्स्ट के बीच में दिया जाता है तो उससे मैं इन टेक्स्ट साइटेशन कहती हूँ। बात समझ आ गई बेटा? अब इन टेक्स्ट साइटेशन में दो तरीक़ेकार होते हैं। एक हमारे पास डायरेक्ट कोटेशन होते हैं, दूसरे हमारे पास इनडायरेक्ट कोटेशन होते हैं। बेटा ये मतलब आप बड़े गौर से समझ लें, हमने बचपन से ग्रामर में पढ़ा है कि डायरेक्ट कोट वो कोट होता है जब आप किसी का हू बहू, लफ्ज़ ब लफ्ज़ एग्जैक्टली जो लिखा है वही अपना एज इट इज़ इम्प्रिंट कर दें, एज इट इज़ आप वो टाइप कर दें या इमिटेट कर दें, वही चीज़ लिखें जो ऑलरेडी है, उसमें आप किसी डॉट या कॉमा का भी चेंजेस ना करें। तो उसको हम कहते हैं कि हमने किसी की बात को डायरेक्टली अपने काम में मेंशन किया, डायरेक्टली अपने काम में कोट किया या साइट किया किसी के कोट को। ठीक है बेटा?
जब आप ये करते हैं तो उसके लिए ऑटोमेटिकली हमारे जहन में होता है कि हमें इन्वर्टेड कॉमास के अंदर वो बात लिखनी होती है, वो इन्फॉर्मेशन लिखनी होती है। इन्वर्टेड कॉमास को कोटेशन मार्क्स भी कहा जाता है। लेकिन यहाँ पे दो बातें आ जाती हैं। हमारे पास दो टाइप के डायरेक्ट कोट्स होते हैं। एक तो हमारे पास शॉर्ट कोटेशन होती है, दूसरा हमारे पास लॉन्ग कोटेशंस होती हैं। शॉर्ट कोटेशन और लॉन्ग कोटेशन के बीच में बेसिक डिफरेंस ये होता है कि शॉर्ट कोटेशन 1 से लेके 39 वर्ड्स तक होती है। दैट मीन्स अगर आप किसी का 1 वर्ड लिख रहे हैं, 2 लिख रहे हैं, 3 लिख रहे हैं या 39 तक जितने भी लिख रहे हैं, वो शॉर्ट कोटेशन कंसिडर की जाएगी। उसको लिखने का तरीक़ेकार बड़ा सिंपल है और वो क्या है कि आपने इन्वर्टेड कॉमास के अंदर या कोटेशन मार्क्स के अंदर वो बात लिख देनी है, ठीक है। जब हम बात करते हैं लॉन्ग कोटेशन की, उसका तरीक़ेकार ये होता है बेटा कि वो 40 या 40 से ज़्यादा वर्ड्स की होती है। आइदर 40 वर्ड्स होंगे या 41 होंगे या 42 या 1000 या 10,000। सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रही हूँ कि 40 या 40 से ज़्यादा जितने भी वर्ड्स होंगे वो लॉन्ग कोटेशन समझे जाएंगे। लेकिन लॉन्ग कोटेशन को हम इन्वर्टेड कॉमर्स में कोटेशन मार्क्स में नहीं लिखते। यस, उसके लिए, जबकि डायरेक्ट कोट है। अब जिसको इसका सही रीज़न पता है, जिसको पता है कि किस तरह से लिखते हैं, प्लीज़ वो नीचे कमेंट डाउन करें, कमेंट डाउन बिलो प्लीज़, सॉरी, वो नीचे एक कमेंट कर लें। जिनको नहीं पता, जब तक कि वो वाला ग्रुप कमेंट कर रहे हैं, आपको मैं बताती हूँ। उसको लिखने का तरीक़ेकार है इन द फॉर्म ऑफ ब्लॉक कोट। ब्लॉक कोट क्या होता है? ब्लॉक कोट ये होता है बेटा कि जब आपकी कोटेशन जो आप किसी की डायरेक्टली ले रहे हैं वो 40 या 40 वर्ड से ज़्यादा है, तो आप उसको नेक्स्ट लाइन से, न्यू लाइन से स्टार्ट करते हैं। यू बिगिन इट फ्रॉम द न्यू लाइन, राइट, विदाउट एनी इन्वर्टेड कॉमास। लेकिन अब इसमें एक बड़े मज़े की बात है, वो ये है कि जब आप उसे न्यू लाइन से करेंगे तो चाहे वो 40 वर्ड्स हैं या 40 से ज़्यादा जितने भी वर्ड्स हैं, वो एक मतलब वो जितनी भी लाइंस बनती हैं, जितने भी पैराग्राफ्स बनते हैं या एक बनता है या जितने भी, उस पूरे के पूरे लाइंस को, सारे के सारे वर्ड्स को, उस पूरे के पूरे पैराग्राफ या पैराग्राफ्स को आपने 0.5 इंच इंडेंट करना है। और दूसरी तरफ से तो जाहिर है कि वो करली लाइन होगी, रिग्ड होगी, लेकिन लेफ़्ट साइड से आपने पूरा का पूरा उसको 0.5 इंच इंडेंट करना है। तो वो ऐसे एक ब्लॉक के फॉर्म में नज़र आता है, जिसको अब हम वापस, जो मैंने आपको कहा था ना कि साइटेशन में समझाऊंगी, ये पेज नंबर 9 पे आ जाएं आप लोग। आप देख रहे हैं कि ये ब्लॉक कोटेशन है, कोई कोटेशन मार्क्स यहाँ पे यूज़ नहीं हुई। पूरा का पूरा पैराग्राफ हमने जो है, पूरा का पूरा ब्लॉक कोट हमने 0.5 इंच लेफ़्ट मार्जिन से इंडेंट किया हुआ है। यहाँ पे एक ब्लॉक की शक्ल देता है, ऑटोमेटिकली समझ आ जाती है कि दिस इज़ अ ब्लॉक कोटेशन। समझ आ गई बेटा? अब इसके बाद हम जाते हैं, हमारे पास आ जाते हैं इनडायरेक्ट कोटेशंस। अब जब हम इनडायरेक्ट कोटेशंस की बात करते हैं तो उसमें दो चीज़ें आ जाती हैं। इनडायरेक्ट कोटेशन या आप समरी के फॉर्म में लिखते हैं मोस्टली, या आप पैराफ्रेजिंग के फॉर्म में लिखते हैं। अब समरी और पैराफ्रेजिंग से मैं आपको क्या एक्सप्लेन करना चाह रही हूँ। सबसे पहले तो पैराफ्रेज को समझे बेटा। पैराफ्रेज मीन्स टू राइट एग्जैक्टली द सेम of almost the same length as of the original text but in simpler words, in your own words। जब आप किसी का काम as it is उठाते हैं, words उतने ही रहेंगे, लेकिन आप उसको सिर्फ अपने वर्ड्स में कन्वर्ट कर देते हैं, आसान लफ्ज़ों में कन्वर्ट कर देते हैं, कम या ज़्यादा नहीं करते, लगभग ऑलमोस्ट उतना ही वर्ड्स होते हैं, उतनी ही लेंथ होती है जितना तो ओरिजिनल टेक्स्ट का था। लेकिन द डिफरेंस वो ये है जो आपने क्रिएट किया है कि आपने उसे ईजियर वर्ड्स में कन्वर्ट किया। इसको आप पैराफ्रेज कहते हैं। जो समरी है उसका मतलब ये है कि आप किसी टेक्स्ट को शॉर्ट करके उसका मेन आइडिया, मेन थीम, बेसिक कॉन्सेप्ट अपने वर्ड्स में लिख लें इन अ शॉर्ट फॉर्म। फॉर एग्जांपल, आप पूरी किताब का कुछ लाइनों में, चंद जुमलों में, फ्यू वर्ड्स में आप उसका थीम या उसका मेन आइडिया या बेसिक कॉन्सेप्ट आप जो शख़स करना चाह रहे हैं वो आप अपने वर्ड्स में लिख लें, छोटा करके, श्रिंक करके। इसको समरी कहती है। ये दो मेथड्स मोस्टली इस्तेमाल होते हैं जब हम इनडायरेक्ट कोड की बात करते हैं।
जब हमने अपने काम को वैलिडेट करने के लिए किसी का हवाला लेना होता है, हम डायरेक्ट हवाला देते हैं या हम इनडायरेक्ट। डायरेक्ट में मैंने आपको बता दिया लॉन्ग कोट शॉर्ट कोट होता है, और लॉन्ग कोट ब्लॉक कोट के फॉर्म में लिखा जाता है, शॉर्ट कोट इन्वर्टेड कॉमर्स में लिखा जाता है। जबकि इनडायरेक्ट हवाला हमारा पैराफ्रेजिंग हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा, या समरी हो सकता है, और इसके लिए हमें किसी भी कोटेशन मार्क्स की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने अपने वर्ड्स में लिखा होता है, तो इसमें हमें कोटेशन मार्क्स की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपने हवाला अब आपने जस्टिफाई करना है, चाहे डायरेक्ट कोट है या इनडायरेक्ट कोट है, कि आपने ये कहाँ से लिया है, किसका काम है, ताकि ये वैलिडेट हो जाए कि जिस सोर्स से, जिस ऑथर का ये काम आपने लिया है वो क्रेडिबल है, वो जस्टिफाइड है, वो वेरीफाइड है, वो रिलायबल है, जिससे कि आपके काम की क्रेडिबिलिटी जिस पर डिपेंड होती है। तो उसको लिखने का तरीक़ेकार ये है कि जब आपने किसी का काम लिख दिया, आप उसके फ़ौरन बाद लास्ट नेम ऑफ दैट ऑथर एंड डेट ऑफ पब्लिकेशन दे देते हैं। समझ आ गई बेटा? लास्ट नेम क्यों? क्योंकि चूँकि ज़ाहिर है अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन है, अमेरिका में ज़्यादातर मुखातिब प्रोफेशनली लास्ट नेम से किया जाता है, तो यहाँ पे आप लास्ट नेम ऑफ द ऑथर लिखेंगे। बट थोड़ा सा डिफरेंस अब मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, जब आप किसी का डायरेक्ट काम उठा रहे हैं, डायरेक्ट कोट के फॉर्म में लिख रहे हैं, तो आप 3 चीज़ें मेंशन करेंगे। आप पैरेंथेसिस में, बेटा देखो 3 किस्म के ब्रैकेट्स होते हैं हमारे पास। वो जो छोटे वाले होते हैं उनको पैरेंथेसिस कहते हैं, वो जो दरमियाने वाले जिसको अक्सर करली ब्रैकेट्स भी कहा जाता है, उसका नाम है ब्रेसेस। जैसे दांतों में हम ब्रेसेस नहीं लगाते, वो वाला वर्ड ब्रेसेस। जो बड़े वाले, वो जिसको हम ब्लॉक या ब्रैकेट्स कहते हैं, उसका नाम हमारे पास, या स्क्वायर ब्रैकेट्स जिसे कहते हैं, उसको हम ब्रैकेट्स कहते हैं। तो पैरेंथेसिस, ब्रेसेस, ब्रैकेट्स, ठीक है। अब हमने ये पैरेंथेसिस में लिखना है, हमने अब इसको लिखने के 2 तरीक़ेकार हैं, या आप नैरेटिव फॉर्म में लिखें या आप पैरेंथेटिकल फॉर्म में लिखें। नैरेटिव फॉर्म ये होता है कि आप या राइटर का नाम पैरेंथेसिस से बाहर लिख दें। फॉर एग्जांपल अकॉर्डिंग टू बानो इट इज़ स्टेटेड दैट सो एंड सो, और फिर आप डेट लिखते हैं, या अकॉर्डिंग टू बानो और पैरेंथेसिस के अंदर आप डेट लिख रहे हैं, इट इज़ स्टेटेड दैट सो एंड सो एंड सो, ठीक है। ये नैरेटिव फॉर्म में है। पैरेंथेटिकल फॉर्म ये होता है कि आप राइटर का नाम, राइटर की जो भी इंफॉर्मेशन आपने मेंशन करनी है, वो सारी की सारी आखिर की तरफ आप पैरेंथेसिस के अंदर लिखते हैं उसको। जैसे कि आप यहाँ पर देख लें, ये अकॉर्डिंग टू जोन्स 1998। अब ये हमारे पास नैरेटिव फॉर्म है, क्योंकि जॉन्स बार लिखा है, सिर्फ एक ही इन्फॉर्मेशन पैरेंथेसिस में। जबकि नेक्स्ट स्टाइल में पूरी बात लिख के पैरेंथेटिकल में वो मिस्टर जॉन्स का नाम, डेट और पेज नंबर एज इट इज़ लिखा है, और वो सारा कुछ पैरेंथेसिस के अंदर बंद है। तो ये पैरेंथेटिकल फॉर्म है। इस तरह आप अपने हिसाब से इसको 1000 तरीक़ों से कर सकते हैं, डजेंट मैटर। बेटा ये मैं आपको बहुत जनरली, बहुत स्पेसिफिक होकर समझा रही हूँ, लेकिन आपने यहाँ पे रुकना नहीं है। आपने स्लाइड्स को, इस डॉक्यूमेंट को गौर से पढ़ना है, ताकि आपको सारी डिटेल्स समझ आ जाए। लेकिन मुझे चूँकि वीडियो की टाइम लिमिट का ख्याल करना है। एनीवेज़, अब डिफरेंस क्या है कि लिखना क्या क्या होता है। अगर किसी का हवाला दे रहे हैं, क्या इन्फॉर्मेशन हम इन टेक्स्ट साइटेशन में ऐड करेंगे, वो इन्फॉर्मेशन होती है। अगर आप डायरेक्ट कोट कर रहे हैं, तो आप लास्ट नेम ऑफ द ऑथर, पैरेंथेसिस स्टार्ट करके लास्ट नेम ऑफ द ऑथर, कॉमा, डेट ऑफ पब्लिकेशन, फॉर एग्जांपल 1990 है या 2024 है या 2020 है या 2018 है, वो, फिर कॉमा, फिर पेज नंबर। अगर तो बेटा एक पेज है तो यू वुड जस्ट राइट अ पी, स्मॉल पी, डॉट, जो पेज नंबर है। अगर दो ज़्यादा पेजेस हैं एक से, तो आप डबल पी स्मॉल वाला, डॉट, और फॉर एग्ज़ाम्पल पेज नंबर आपका है 20 से 30 तक पेजेस हैं, तो आप 20 हाइफन, वो बीच के डैश को जो आप डैश डैश बोलते हैं उसको हाइफन कहते हैं, हाइफन और 30, और पैरेंथेसिस क्लोज्ड और फुल स्टॉप उसके बाद में। ये याद रखें, पैरेंथेसिस जब आप पैरेंथेटिकल फॉर्म में लिखते हैं, तो जब आपकी बात कंप्लीट होती है उसके बाद आप फुल स्टॉप नहीं लगाते। बात कंप्लीट हुई, उसके बाद पैरेंथेसिस में आपने हवाला दिया, उसके बाद फुल स्टॉप, क्योंकि ये इन टेक्स्ट साइटेशन या टेक्स्ट के अंदर बंद होगी, फुल स्टॉप बाद में आएगा। समझ आ गई बेटा? ये तो ये तरीक़ेकार है। जब इनडायरेक्ट कोट लिखेंगे बेटा, वहाँ पे भी आपने लास्ट नेम ऑफ द ऑथर, वहाँ पे भी आपने डेट ऑफ पब्लिकेशन लिखनी है, वहाँ पे भी वही नैरेटिव फॉर्म, वही पैरेंथेटिकल फॉर्म चलेगी, सिर्फ वहाँ पे पेज नंबर नहीं होगा। रीज़न क्या है बेटा? जब मैं डायरेक्टली किसी का काम कोट कर रही हूँ, तो मुझे बताना होगा कि कौन से पेज नंबर से मैंने, या कौन से, अक्सर बाज़ों का ऐसा होता है कि हमारे पास कुछ वेबसाइट्स में कुछ जगहों में पेज नंबर्स नहीं होते, तो वहाँ पर आपने लिखना होता है स्मॉल लेटर्स में पैरा, PARA, पैरा, डॉट,
डॉट और जो पैरा का नंबर है, या ज़्यादा पैराग्राफ्स हैं तो PARAS पैरास स्मॉल में डॉट और वो पैरा के जो फॉर एग्जांपल जितने भी हैं 2 हैं 3 हैं या जो भी हिसाब किताब है, ठीक है। कभी कभी टेबल्स होती हैं तो आप लिखते हैं टेबल T कैपिटल होगा, टेबल और टेबल नंबर आप लिख देंगे टेबल 8, टेबल 3, टेबल 4, क्योंकि कुछ जगहों पे पेज नंबर नहीं होता तो कंफ्यूज नहीं होना। अगर आप टेबल की बात करें तो आप ऐसे लिखेंगे, अगर आप पेज नंबर की बात करें तो आप ऐसे लिखेंगे, आप पैराग्राफ को मेंशन करें तो ऐसे। लेकिन ये उस केस में आप कर रहे हैं जिसमें आप डायरेक्ट कोट ले रहे हैं, ठीक है, क्योंकि आपको बताना होता है कि सो एंड सो प्लेस से मैंने ये बात उठाई है। लेकिन जब आप इनडायरेक्टली बात कर रहे हैं, मे बी आप पूरे बुक का थीम लिख रहे हैं तो आप पूरे बुक के पेजेस तो नहीं लिखेंगे, ऑब्वियसली आप उसका थीम दे रहे हैं, अपने वर्ड्स में दे रहे हैं, तो इसीलिए वहाँ पे पेज नंबर लिखना ज़रूरी नहीं होता। हाँ, APA आपको इम्पोज नहीं कर रहा आप पे कि आप खामखा डायरेक्ट में पेज नंबर लिख दें, वो कहते हैं कि इट इज़ प्रेफरेबल, लेकिन मैं कहती हूँ कि जो रीज़न मैंने आपको दिया है बेहतर है कि आप पेज नंबर लिख लें। अगर आप नहीं लिख लें तो कोई बुराई भी नहीं है, ठीक है। ये तो अब ये तरीक़ेकार हो गया जो मैंने आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट। अब इसमें मेरे पास डिफरेंट केस सिनेरियोज़ हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब आपने वर्क बाय वन ऑथर के लिए ये पेज नंबर 14 पे मैंने आपको समझा दिया। पहला हमारे पास यहाँ पे नैरेटिव फॉर्म में, दूसरा हमारे पास पैरेंथेटिकल फॉर्म में लिखा हुआ है, और ये इनडायरेक्ट वर्क है। अब हम आ जाते हैं, कभी कभी अक्सर आर्टिकल्स, आप लोगों के असाइनमेंट्स भी बहुत सारे ऐसे होते हैं या ग्रुप प्रेजेंटेशन होते हैं वो एक से ज़्यादा लोगों ने किए होते हैं, तो उसको सॉर्ट आउट करने के लिए ऐसे बहुत सारे आर्टिकल्स हैं जो एक से ज़्यादा लोगों ने किए हैं। अब फॉर एग्जांपल अगर 2 ऑथर्स हैं एक असाइनमेंट के या एक पेपर के या एक आर्टिकल के, 2 लोगों ने लिखा है, तो अब उसको लिखने का तरीक़ेकार क्या होगा बेटा? अगर तो आप नैरेटिव फॉर्म में लिखेंगे, फॉर एग्जांपल वेगनर एंड पैटी हैं, इन दोनों ने ये काम किया, तो अब अगर इन दोनों का काम आपने नैरेटिव फॉर्म में लिखना है तो आपने AND एंड यूज़ करना है, इंग्लिश वाला, बात समझ आ गई। लेकिन अगर आप इसे पैरेंथेटिकल फॉर्म में लिख रहे हैं, यानी पैरेंथेसिस में क्लोज करके इन दोनों का नाम लिख रहे हैं, तो फिर आपने AND इंग्लिश में जैसे वर्ड्स में हम लिखते हैं वैसे नहीं लिखना, आपने एक एम्पर्स एंड लगाना है। ये जो एम्पर्स एंड है, देखिए यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है एम्पर्स एंड यूज़ करना है, ये चीज़ क्लियर हो जाए, ठीक है। फिर इसके बाद आ जाता है बेटा वर्क बाय 3 और मोर ऑथर्स। लेट्स से आपका काम, आपका आर्टिकल, आपकी असाइनमेंट 3 या 3 से ज़्यादा ऑथर्स ने लिखा है, उसके लिए क्या तरीक़ेकार होगा? उसके लिए भी बड़ा सिंपल तरीक़ेकार है। आपने फर्स्ट ऑथर का नेम लिखना है और उसके बाद एट आल लिखना है, ETHALR डॉट पीरियड। ये एक एब्रिविएशन है, एक लैटिन एब्रिविएशन है जिसका माने है दिस एंड द रेस्ट, दिस एंड ऑल अदर। बात समझ आ गई? अब याद रखें बेटा, मेन ऑथर हमेशा फर्स्ट ऑथर होता है, जो उसका मेन होता है, जिसका उसमें ज़्यादा काम होता है। आपने उस फर्स्ट ऑथर का नाम लिखना है। फॉर एग्जांपल कर्निस और कर्निस से आगे भी बहुत सारों ने काम किया है, 3 या 3 से ज़्यादा का, तो आपने लिखना है कर्निस एट आल डॉट कॉमा 1993। यहाँ पे मैं ये कॉमा क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि आपको पता है कि लास्ट नेम ऑफ द ऑथर होता है, कॉमा होता है और डेट होता है। क्यों ये मैं सिग्निफाई करके बेटा कंफ्यूज नहीं होना कि फॉर एग्जांपल एट आल के बाद फुल स्टॉप लगा है, डॉट लगा है, ये फुल स्टॉप नहीं है, ये इसका अपना, आपको पता है हर डिफरेंट हमारे पास जो एब्रिविएशंस होते हैं उसके बाद डॉट लाजिम होता है, तो ये डॉट इसके साथ अटैच है। इस डॉट को देख के आपने अपना कॉमा नहीं उड़ाना, पैटर्न वही रहेगा। बात समझ आ गई बेटा? अब इसके बाद आ जाता है, अगर कभी कभी ऐसा होता है कि एक काम किसी ऑर्गेनाइजेशन ने, कभी कभी बहुत सारी मशहूर ऑर्गेनाइजेशंस हैं जैसे कि WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, या फिर हमारे पास AP अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, और इस तरह बहुत सारी, और मदर्स अगेंस्ट ड्रंक ड्राइविंग एक ऑर्गेनाइजेशन है। अब ये बहुत फेमस ऑर्गेनाइजेशंस हैं। हम कभी कभी हमारे पास चूँकि इनके जो हमारे पास एब्रिविएशंस होते हैं वो ज़्यादा फेमस होते हैं, तो हम क्योस में आ जाते हैं कि लेट्स सपोज अगर मैं WHO की बात कर रही हूँ तो क्या अब मुझे उनके बार बार साइटेशन देनी है, उसका बार बार हवाला देना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? उस रिपीटिशन को क्या मैं बार बार पूरा नाम लिखूंगी? तो अब उसको जस्टिफाई यहाँ पे करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन। फर्स्ट टाइम में आप उसका नाम फुल करेंगे, अगर आप उसे अकॉर्डिंग टू लिख रहे हैं तो ऐसे करके लिखेंगे, अगर आप उसको पैरेंथेसिस के फॉर्म में लिख रहे हैं तो आप फर्स्ट टाइम में उसको ऐसे लिखेंगे। आप पेज नंबर 16 भी देख सकते हैं, आप उसको इस फॉर्म में लिख देंगे, ठीक है। अब जब आपने ये कर लिया,
तो ये देखिए फर्स्ट साइटेशन में आप नेम भी लिखेंगे और साथ उसका एब्रीविएशन भी लिखेंगे, लेकिन जब आप सेकंड या थर्ड या फोर्थ टाइम साइट करेंगे तो आप सिर्फ और सिर्फ उसका एब्रीविएशन यूज़ करेंगे। इसी तरह बेटा जब हमारे पास 2 या ज़्यादा वर्क किए होते हैं और आपने उसको सेम पैरेंथेसिस में मेंशन किया, मिसाल के तौर पर मैं अपना एक कॉन्सेप्ट जस्टिफाई करने के लिए 2-3 हवाले देना चाह रही हूँ और वो एक ही कॉन्सेप्ट जस्टिफाई करने के लिए देना चाह रही हूँ, तो उसको लिखने का क्या तरीक़ेकार होगा। ज़ाहिर है अब मुझे उसको एक ही पैरेंथेसिस में या एक ही जगह पर लिखना है, एक ही नैरेटिव फॉर्म में लिखना है। उसका तरीक़ेकार ये होगा बेटा कि आप उसी तरह लिखेंगे लास्ट नेम ऑफ द ऑथर कॉमा डेट ऑफ पब्लिकेशन, लेकिन यहाँ पर तो 2 लास्ट नेम्स आ गए हैं, 2 डेट ऑफ पब्लिकेशंस आ गए हैं, एक में कैसे लिखें। उसको लिखने के लिए आप एक सेमी कॉलन से, यानी वो जो डॉट और नीचे कॉमा होता है ना, सेमी कॉलन सेमी कोलॉन, जैसे भी आप उसे प्रोनाउंस करें उससे आप उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं ऐसे। इसी तरह बेटा लेट सपोज अगर कभी कभी ऐसा हो जाता है कि जो लास्ट नेम ऑफ द ऑथर है वो सिमिलर होता है। लेट सपोज इट्स बानो, 2 ऑथर्स हैं और उन दोनों का लास्ट नेम बानो है, या 2 ऑथर्स हैं तो दोनों का लास्ट नेम खान है। अब आप क्या करेंगे, उसको जस्टिफाई करने के लिए आप फर्स्ट नेम का इनिशियल ऐड करेंगे। फॉर एग्जांपल एल्बर्ट जॉनसन है एक और दूसरा लैंग्रेन जॉनसन है, तो एल्बर्ट जॉनसन का ई डॉट जॉनसन है, लैंग्रेन जॉनसन का एल डॉट जॉनसन है। इस तरह आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं अपने 2 कामों को अगर उनके लास्ट नेम सेम है, इफ़ इन दैट केस। कभी कभी बेटा ऐसा भी हो जाता है कि आपको एक ही ऑथर की 2-3 कामों को जस्टिफाई करना, मतलब मैं एक ही ऑथर के 2-3 वर्क्स को अपनी बात को प्रूफ करने के लिए यूज़ करी डिफरेंटली, तो आपको हमेशा याद रखना है कि आपने उसको जस्टिफाई करते हुए सबसे पहले पुराने काम का हवाला देना होता है, फिर नए पे अर्लीस्ट टू लेटेस्ट, अर्लीस्ट टू रिसेंट की तरफ आप जाते हैं इस सिनारियो में। लेकिन कभी, और वो आप कैसे चेंज करेंगे, विद द डेट ऑफ पब्लिकेशन। लेकिन कभी कभी एक ही साल में उस ऑथर ने 2-3 काम किए होते हैं, तो अब उसको आप कैसे जस्टिफाई करेंगे, उसको आप डेट के साथ, फॉर एग्जांपल ब्रेंडेट है तो उसने 1-2 काम किए हैं 1981 में, तो सबसे पहले जब आप पहले काम की बात करें तो आप 1981 ए लिखेंगे, जब उसी जगह पे आप दूसरे काम की बात करें तो आप 1981 बी लिखेंगे। ये जेड तक भी जा सकते हैं, जितने काम है उतने तक। तो इस तरह आपको पता चलेगा कि इसी साल में ये वाला काम, ए वाला काम इसने पहले किया था, बी वाला काम इसने बाद में किया था। समझ आ गई बेटा। इसके साथ आपका साइटेशंस ख़त्म होता है, लेकिन बेटा इसको गौर से पढ़ लें, इसमें बहुत और डिटेल है, मुझे सिर्फ टाइम को मैनेज करते हुए जल्दी जल्दी आगे गुजरना है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास APA रेफरेंसिंग बेसिक्स। अब बेटा रेफरेंस क्या होता है, मैं इसको बिब्लियोग्राफी पोर्शन कहती हूँ, जो पेज के बिल्कुल काम के बिल्कुल एंड में एक अलग चैप्टर जनरेट किया जाता है, अलग पेज होता है जिसमें आपने सारे रेफरेंसेस, मतलब बेटा इसको मैं ये कहती हूँ कि बड़ा एड्रेस, मुकम्मल एड्रेस, वो जो आपने छोटे छोटे हवाले दिए थे अपने काम के बीच में, इंटेक्स साइटेशंस दी थी, उनका फुल एड्रेस। क्योंकि ज़ाहिर है बहुत स्टूडेंट्स के जहन में ये क्वेश्चन आया होगा कि मैम खाली डेट ऑफ पब्लिकेशन से, खाली ऑथर के नाम से हमें कैसे पता चलेगा कि क्या काम है, बुक है, आर्टिकल है, जर्नल है, पेपर है, व्हाट इज़ इट, और टाइटल क्या है, किस सब्जेक्ट से रिलेटेड है, कहाँ पे हुआ है, हमें यह सब कुछ कैसे पता चलेगा। ये सब कुछ आपको पेपर के लास्ट में बिब्लियोग्राफी पोर्शन में पता चलेगा, जहाँ पे आपने उन सारी सोर्सेज का जिससे आपने साइटेशन लिए है उसका एक लिस्ट बनाया होता है। इसको हम कहते हैं रेफरेंस लिस्ट या बिब्लियोग्राफी पोर्शन, जो कि आपके पेज के एंड में होता है। इसको पढ़ने के लिए आपको कुछ बेसिक रूल्स पता होने चाहिए। सबसे पहले तो आपको एक चीज़ ये पता होना चाहिए कि आपकी जो पूरी रेफरेंस लिस्ट है बेटा, वो आपकी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में होनी चाहिए। उसके लिए बड़ा सिंपल है, 1 2 3 करके डॉट डॉट करके आपने नहीं लिखना होता। आपने जितने रेफरेंसेस लिख दिए उन सबको सेलेक्ट करो, ऊपर अपने MS वर्ड में जाओ, वहाँ पर A to Z का ऑप्शन होता है, उसको क्लिक करो, वहाँ पर बहुत सारा एक बड़ा सा ब्लॉक खुलेगा, उधर वहाँ पे असेंडिंग पे क्लिक करो कि इन असेंडिंग ऑर्डर, और ओके कर दो। तो बाय डिफ़ॉल्ट ऑटोमेटिकली अर्लीस्ट टू रिसेंट, अर्लीस्ट टू लेटेस्ट करके वर्क सारे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज हो जाएंगे। ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। फिर
ये रूल्स हो गए। उसके अलावा अब नेम्स हम ऑथर के इन्वर्ट करके लिखते हैं, क्योंकि यहाँ पर तो खाली लास्ट नेम नहीं लिखना है, यहाँ पे फुल नेम लिखना है, तो हम इन्वर्टेड फॉर्म में नेम को उल्टा करके लिखते हैं। कैसे लिखते हैं? फॉर एग्जाम्पल लास्ट नेम पूरा लिखते हैं, कॉमा लगाते हैं और बाकी फर्स्ट नेम का इनिशियल। लेट सपोज शाहिदा बानो है, तो आप लिखेंगे बानो कॉमा एंड देन यू वुड राइट एस डॉट, इनिशियल लगा दिया शाहिदा का। इसी तरह फॉर एग्जांपल शाहिदा बानो ख़ान है, नाम बड़ा है, तो आप लिखेंगे ख़ान कॉमा बी डॉट एस डॉट, इस तरह। बाकी आप ये रूल गौर से पढ़ लें, आपको समझ आ जाएगी। इसी तरह बेटा इसमें और भी कुछ चीज़ें लिखी हैं कि आपने अगर फॉर एग्जांपल 10 ऑथर लिखने हैं, 20 लिखने हैं, 20 से ज़्यादा हैं, तो आपने किस तरह लिखना है, ये सारे रूल्स पढ़ लें, इसमें बड़ा क्लियर है। अब बेटा यहाँ पे मैंने आपको बहुत सारे फॉर्मेट्स एग्जैक्ट जिससे को आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं और उसमें बस फ्यू एडजस्टमेंट, बुक का नाम, आर्टिकल का नाम, टाइटल का नाम, चीज़ों का नाम चेंज कर लें और आपको वोला यू आर गुड टू गो। मतलब खाली मैंने आर्टिकल ही नहीं, बल्कि मैंने आपको ये भी बताया है कि आपको एक म्यूज़िक वीडियो का, एक एपिसोड का, एक गूगल मूवी का, या मे बी किसी भी, मतलब एनीथिंग पॉसिबल, आप अगर कहीं से भी आप रेफरेंस ले रहे हैं, बना रहे हैं, तो आप उसे कैसे लिखेंगे। तो यहाँ पे मैंने प्री मेड फॉर्म्स बनाई हैं और नीचे उनके लिए एग्जांपल्स दिए हैं, आप इसको गौर से पढ़ लें, वो एज इट इज़ है। मैं आपको सिर्फ बेसिक समझा देती हूँ ताकि आपको पढ़ने में और समझने में आसानी हो। सबसे पहले मैं आपको बुक का फॉर्मेट बता देती हूँ, दूसरा फॉर्मेट मैं आपको आर्टिकल का बता देती हूँ। बेसिक बुक फॉर्मेट वही है, ऑथर का नेम जिस तरह से मैंने आपको बता दिया। उसके बाद पैरेंथीसिस में आपने ईयर ऑफ पब्लिकेशन, वो 2018 है, 2003 है, जो भी है, 1900 में जिसमें भी है वो आपने लिख देना। उसके बाद फुल स्टॉप, फिर आपने टाइटल ऑफ द वर्क लिखना है। एक बात याद रखो बेटा, जब कभी आप किसी किताब का टाइटल देते हो, APA कहता है कि आपने किताब का टाइटल ट्रांसवर्स करके, तिरछा करके आपने देना है, इटैलिसाइज करना है उसको। आपने टाइटल ऑफ द मेन वर्क दे दिया। अब अगर लेट सपोज कभी कभी ऐसा होता है कि एक बुक का टाइटल के अलावा सब टाइटल भी होता है, तो सब टाइटल आप मतलब टाइटल के बाद आप कॉलन लगाएंगे, फिर आप सब टाइटल लिखेंगे और फिर फुल स्टॉप करेंगे। अगर खाली टाइटल है तो उसके फ़ौरन बाद कॉलन नहीं, फुल स्टॉप लग जाएगा। ठीक है बेटा। अब यहाँ पर कैसे ये जो कैपिटल लेटर का जिक्र किया जा रहा है, इसका माने यही है जो मैंने आपको हेडिंग में बता दिया कि बेटा मेन वर्ड्स, मेन टाइटल में मेन वर्ड्स, वही वाला कॉन्सेप्ट है कि वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होते हैं। ठीक है। अब इसी तरह जब आपने फुल स्टॉप, अब पब्लिशर का नाम, कौन पब्लिशिंग हाउस, कौन सा पब्लिशिंग कमेटी है जिसने या किसने इसको पब्लिश किया, किस जगह पे ये पब्लिश हुई है, उसका नेम आपने लिखना है। फुल स्टॉप DOI URL, कोई उसका ऑनलाइन लिंक अगर है तो आप मेंशन करें। ठीक है। अब ये आपको APA 7th एडिशन सजेस्ट करता है कि अगर किसी बुक, किसी आर्टिकल के कोई भी रेफरेंस आप लिख रहे हैं, अगर उसका कोई ऑनलाइन लिंक है तो आप ज़रूर दें। कहने से मुराद ये ज़रूरी नहीं कि आप कोई ऑनलाइन आर्टिकल, इवन अगर आप लाइब्रेरी की कोई बुक है या आपके पास वैसे कोई न्यूज़पेपर है जिसका आप दे रहे हैं, तो आप सर्च करें कि अगर उसका कोई ऑनलाइन लिंक है तो वो ज़रूर रखें। ये APA 7th एडिशन आपको ये इंस्ट्रक्ट करता है। ठीक है बेटा। इस तरह एक एग्जाम्पल यहाँ पे आपके पास लिखी हुई है, बुक का राइटर का नाम, वो आप चेक कर लें। इस तरह बहुत सारे आप ये सारे पेजेस पढ़ लें। इसके बाद मैं आपको आर्टिकल का बता देती हूँ कि उसको आपने कैसे करना है। बेसिक फॉर्मेट फॉर आर्टिकल्स, वही ऑथर का नाम, 2 है 3 है तो इसी तरह एम्परसैंड लगेगा। ये सारे रूल्स मैंने ऊपर लिखे हुए हैं, वो आप गौर से पढ़ लें APA साइटेशन बेसिक्स के नीचे। अब ऑथर के नेम्स के बाद उसी तरह डेट आएगा। आप इधर देखें टाइटल ऑफ द आर्टिकल, क्योंकि आर्टिकल का टाइटल है, बुक नहीं है, तो कभी भी इटैलिक नहीं होगा, स्टैंडर्ड फॉर्म में होगा। लेकिन टाइटल ऑफ पीरियोडिकल, अब पीरियोडिकल वो चीज़ होती है, वो किताबचा होता है, वो किताब होता है जिसमें बहुत सारे आर्टिकल्स होते हैं और जिससे आपने आर्टिकल लेके लिखा है। तो चूँकि वो किताबी शक्ल में है उस पीरियोडिकल का नाम जिससे आपने आर्टिकल एक्सट्रैक्ट किया है, तो ज़ाहिर है पीरियोडिकल का टाइटल तो फिर इटैलिसाइज होगा ना, क्योंकि APA कहता है कि भाई आपने बुक के टाइटल को हमेशा इटैलिसाइज करना है। उसके बाद आपने कॉमा लगा के वॉल्यूम नंबर लिखना है कि इसका वॉल्यूम नंबर क्या है, किस वॉल्यूम नंबर पे वो लिख देना है। फिर आपने इसके बाद पैरेंथीसिस के अंदर इशू नंबर लिखना है कि किस नंबर पर ये पीरियोडिकल इशू हुआ है। उसके बाद आपने कॉमा लगा के पेजेस लिखने हैं। पेजेस माने उस पूरे पीरियोडिकल के पेजेस नहीं, कितने पेजेस पे वो आर्टिकल लिखे, क्योंकि आपका कंसर्न उस आर्टिकल का से है जो आपने रेफरेंस में लिया है। तो उस पीरियोडिकल में कौन से पेज नंबर से कौन से पेज नंबर तक वो आर्टिकल मौजूद है, वो पेजेस लिखने हैं। जैसे कि नीचे आपके पास एग्जाम्पल दिया हुआ है, यहाँ पे देख लें 5,
-13, उसके बाद फुल स्टॉप लगेगा। एंड देन अगैन अगर आपके पास कोई उसका ऑनलाइन लिंक मौजूद है तो आप ऑनलाइन लिंक दे दें, वरना वहीं पे आप रुक जाएं। इस तरह आप ये पेज नंबर 22, 23, 24, 25, 26 पे चेक करें। मैंने आपके लिए सारे डिफरेंट सिनेरियोज़ रखे हैं जो कि आपको मोस्टली पेश आ सकते हैं काम के लिए। अब ये रेफरेंस लिस्ट दिखाने का क्या मकसद है पेज नंबर 27 पे? आप यहाँ पर देखें कि रेफरेंस जनरेट करते हुए आपने एक चीज़ का बड़ा ख्याल रखना है, वो ये है कि आपके रेफरेंसेस हैंगिंग इंडेंटेशन के फॉर्म में जनरेट होंगे। हैंगिंग का मतलब जो फर्स्ट लाइन होगी, चाहे आपका रेफरेंस एक लाइन का है, चाहे आपका रेफरेंस 2 या 3 या 4 या जितने भी लाइंस के, फर्स्ट लाइन लेफ़्ट साइड से स्टार्ट होगी बग़ैर किसी इंडेंटेशन के। ऑपोजिट टू इंडेंटेशन, ऑपोजिट टू फर्स्ट लाइन इंडेंटेशन इज़ द हैंगिंग इंडेंटेशन विच वी विल बी फॉलोइंग हेयर। फर्स्ट लाइन फुल होगा, उसके बाद जितने भी लाइंस आते हैं वो सारे के सारे 0.5 इंच के हिसाब से इंडेंट किए जाएंगे। मैम अगर सिर्फ एक ही लाइन का रेफरेंस हो उसके लिए क्या करना है? तो उसके लिए यही करना है कि नो इंडेंटेशन एट ऑल, बिकॉज मैंने आपको बोल दिया है कि फर्स्ट लाइन में इंडेंटेशन नहीं है हैंगिंग इंडेंटेशन के फॉर्मेट में। तो अगर लाइन ही एक है तो नो इंडेंटेशन एट ऑल। यहाँ पे आप अगर इसे गौर से देखें तो आपको बड़ा अच्छे से नज़र आ रहा है, प्रैक्टिकली भी वही तरीक़ेकार है कि आप वही पैराग्राफ वाले पोर्शन में MS वर्ड में जाएं, वहाँ पर जहाँ पे आपने फर्स्ट लाइन या इंडेंटेशन का था स्पेशल, उसमें वहीं उसी स्पेशल कॉलम के अंदर, स्पेशल बार के अंदर आपके पास हैंगिंग का भी है। इसको सेलेक्ट करें, वहाँ पे हैंगिंग करें, बाय डिफ़ॉल्ट उसे ओके करें, ऑटोमेटिकली आपका ऐसे हो जाएगा। आई होप and I'm very sure that with the help of this student guide it will be very clear to you guys in order so that you can follow this basic method, and with the help of which you can clearly justify your work in the best domains of APA. But sometimes, rarely it would happen, hoga nahi, you might need some additional information, some extra information, some extra techniques, some other advanced tools that you might not find generally in this guide. But if you go deep specifically, I have a list of references given. ये list मैंने बेटा verified books according to AP, according to its main website, official website, मैंने ये सारे books यहाँ पे jot down किए हैं. If you need any further additional information, you are good to go to these specific, आप यहाँ पे देखें इनके links भी मैंने सबके दिए. You are good to go to these links to follow them, and you can get even more in-depth analysis or any query that you are searching for. But I guess for your level this would be enough. With this I would be ending my lecture. If this lecture in any way was helpful to you, kindly comment down below and give your remarks and what you need for next. If you want कि इसका practical demo भी हो तो for that you can put a your comment down, and if more comments are there I would definitely be going for part 2, and any such video that if you want you can mention here with the help of you can mention your queries, your ideas, whatever you want. You have that comment portion for all yourself, so do that, utilize it. And in the end I would just say this, that like, comment, share, subscribe, वो सारा कुछ करो ना भाई, इसको आगे जाओ, इंशाल्लाह और videos आएंगे. I hope with that I'll be ending this lecture. Have a good day or maybe good night. Thank you.